Welcome to today's lecture. Today we'll be discussing about the refraction of light at spherical refracting surfaces. आज हम refracting surfaces पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे refraction of light at spherical refracting surfaces. Before discussing the refraction of light at spherical refracting surfaces, we should know what are spherical refracting surfaces. Spherical refracting surfaces क्या होते हैं? We should know this. Let us first discuss what is a spherical refracting surface. Spherical refracting surface क्या होता है? Spherical refracting surface क्या होता है? It is a single spherical surface. It is a single spherical surface. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस है. इट्स नेम इज, मैं रखूंगा XY. सपोज इस साइड में जो आपका मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, और इस साइड में जो आपका मीडियम है दूसरे वाले साइड में ये आपका रियरर मीडियम है, और ये आपका डेंसर मीडियम है. स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेसिकली एक स्फेरिकल सरफेस है which separates the rearer medium from denser medium. A single spherical surface which separates the rearer medium from denser medium. That is called as what? Spherical refracting surface. अभी तक आपने रिफ्रैक्शन पढ़ी थी, लेकिन आपने प्लेन सरफेस ली थी. आज हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे. तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेसिकली एक spherical surface है, or we can say a single spherical surface which separates what medium? Rearer medium from denser medium. That is called as spherical refracting surface. चूंकि ये spherical surface है, इसको भी पोल होगा, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एंड इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका भी फोकस होगा, एंड अदर थिंग्स. चूंकि ये spherical surface है, every spherical surface has its midpoint which we call as pole. Every spherical surface has a center which we call as center of curvature. Because जो ये spherical surface है, it is basically a part of a sphere. जैसे मैंने spherical mirrors पढ़ाए थे, मैंने बताया था spherical mirror क्या होता है? Part of a hollow sphere. इसी तरह जो ये spherical surface है, it is also a part of hollow sphere. Now, these spherical refracting surfaces, there are two types. एक को हम कहते हैं convex refracting surface. दूसरे को हम कहते हैं concave refracting surface. Spherical surfaces are of two types. Number one, convex refracting surface. Number second, concave refracting surface. Convex refracting surface जो होता है वो spherical surface होता है जिसका bulging out surface, यानी ये curved part जो है, ये curved area, bulging out surface rearer medium की तरफ होगा. It means this is what? This is convex refracting surface. A refracting surface whose bulging out surface is towards what medium? Rearer medium. ये जो bulging out surface है, ये किस medium की तरफ से है? Rearer medium की तरफ से. उसको हम क्या कहते हैं? Convex refracting surface. So this is what? Convex refracting surface. हम ऐसे दूसरा लेंगे. अगर ऐसे हमारे पास refracting surface ऐसे है, यहां देखो, अगर हमारे पास refracting surface ऐसे है, इसका जो bulging out surface है वो किस मीडियम की तरफ है? शाबाश. दैट इज टुवर्ड्स व्हाट मीडियम? डेंसर मीडियम. इसको हम कहेंगे concave refracting surface. Concave refracting surface. Spherical refracting surfaces are of two types: convex refracting surface and concave refracting surface. Convex का जो bulging out surface होता है वो किस मीडियम की तरफ होता है? रियरर मीडियम की तरफ. लेकिन कनकेव का जो bulging out surface होता है वो किस मीडियम की तरफ होगा? डेंसर मीडियम की तरफ. Both of these spherical refracting surfaces, they have the pole, they have the center of curvature, they have radius of curvature, they have focus, they have the principal axis, and so on. Now, जो ये spherical refracting surfaces है, इसमें भी साइन कन्वेंशन हमें यूज करने हैं.
वही साइन कन्वेंशंस, जो साइन कन्वेंशंस हम मिरर्स पे लेते थे। हम वहां बताते थे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यहां हम क्या बताएंगे? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तमाम डिस्टेंसेस जो हम मेजर करेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, उनको हमें मेजर करना है फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वहां भी जो हमने बोला था, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे आर टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल दोस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दे आर टेकन एज नेगेटिव। दूसरा साइन कन्वेंशन इसमें जो होता है कि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे आर टेकन एज positive, while as distance is measured against the direction of incident light, they are taken as negative. These are the two sign conventions which we use while studying the refraction of light at spherical refracting surfaces. Now, for studying refraction of light at spherical refracting surfaces, we have to use some assumptions. We have to use some assumptions. Assumptions used for studying refraction. We have to use some assumptions. सीधे हम लिखेंगे we have to use some assumptions. जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कुछ assumptions पढ़ने हैं. We have to use some assumptions for studying the refraction of light at a refracting surface. Either it may be convex refracting surface or it may be concave refracting surface. See here, this is the principal axis. पहले assumption हम क्या लेते हैं? हम बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसको हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टेकन इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. जब भी हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, हमें ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, हमें ऑब्जेक्ट लेना है क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट के नेग्लिजिबल डायमेंशंस होते हैं. द ऑब्जेक्ट टेकन इज व्हाट? पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. पहला assumption, ऑब्जेक्ट टेकन इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. जब भी हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इस पे हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसको क्या लेंगे हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो इमेज भी होगी पॉइंट इमेज. नंबर सेकंड, जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका ये एपर्चर जो है, ये एपर्चर, दिस एपर्चर इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल. नंबर सेकंड assumption, एपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल. हम यहां दूसरी assumption लेते हैं. क्या बोलते हैं हम? जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका जो एपर्चर है, डायमीटर है, हम बोलते हैं ये डायमीटर बहुत स्मॉल है. तीसरा, देखो बेटा, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये होगा इसका नॉर्मल, SN इसको रखेंगे. ये बेटा होगी इंसिडेंट रे. ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल. सपोज ये है रिफ्रैक्टेड रे. आप देखो, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाती है, ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है. तीसरी assumption हम लिखते हैं, एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. हम बोलते हैं कि these angles are very very small such that the sines and the tangents of these angles are equal to the angles themselves. क्या लेते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्शन? Angles made by incident ray, refracted ray and the normal with principal axis are taken to be very small, or taken to be very small, or taken to be very small such that their sines and tangents, such that their sines and tangents
are equal to the angles themselves, such that their sines and tans are equal to the angles themselves. यानी एंगल्स हम इतने छोटे लेते हैं कि जो साइन आई है वो अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं किसके बराबर, आई के बराबर. इसमें मैथमेटिकल प्रूफ भी है. जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा होता है किसके बराबर, थीटा के बराबर. when limit theta tends to 0, sin 0 is 0. इसका मतलब है जितना ये एंगल छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, उस वक्त this sin I will be equal to I. उस वक्त tan I जो होगा that will be approximately equal to I. तो ये पहली assumption है, object taken is a point object. दूसरी assumption है aperture of refracting surface is very small. तीसरी assumption है जो ये incident ray या refracted ray या normal है, ये इस principal axis से बहुत small angles बनाते हैं, such that उन angles का जो tangent होगा, उन angles का जो sine होगा, वो होता है बराबर angles themselves. The assumptions and sign conventions used for studying the refraction of light at spherical refracting surface. Let us today discuss this refraction of light at convex refracting surface. आप लोगों को अभी मैंने बताया convex और concave refracting surface क्या होते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है refraction of light at convex refracting surface. इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम रिलेशन डिराइव करेंगे between object distance, image distance, radius of curvature of the refracting surface. हम रिलेशन डिराइव करेंगे किस किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and radius of curvature of refracting surface. So let us today discuss refraction of light at convex refracting surface. देखिए कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे. सपोज यहां पर हमारा ये convex refracting surface है, इसका मैं नाम रखूंगा XY. This is convex refracting surface. यहां देखो इस साइड में हमारा डेंसर मीडियम है, से वाटर. दिस इज डेंसर मीडियम. देखो बेटा, XY is a convex refracting surface having pole P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका मैं C ले लूंगा. इसने सेपरेट किया एक डेंसर मीडियम को, जिस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, फ्रॉम ए रियरर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. मैंने XY लिया एक convex refracting surface which separates a denser medium having refractive index μ2 from a rarer medium having refractive index μ1. Suppose जो मेरा ये convex refracting surface है, इसका पोल P है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है. इसका मतलब है P से C तक जो ये डिस्टेंस होगी, this will be equal to R, radius of curvature. इसमें हमें दो केसेस पढ़ने हैं. एक वक्त पे हम क्या काम करेंगे, ये रियल इमेज बनाएगा, दूसरे पे क्या बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज. सपोज हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो हम रखेंगे किस मीडियम में, रियरर मीडियम में. हम बताएंगे यहां पर सपोज दिस O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. व्हाट्स O? इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन व्हाट मीडियम, रियरर मीडियम, डिस्टेंट U फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. O जो है वो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया. क्या लिया मैंने, पॉइंट ऑब्जेक्ट. किस मीडियम में रखा बेटा, रियरर मीडियम में. किस मीडियम, यहां देखो किस मीडियम में, रियरर मीडियम में. हैविंग रिफ्रैक्ट डिस्टेंस कितना दूर पोल से, U. एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आई, इसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया नॉर्मली, है ना ओपी. इसने इसको क्या किया, स्ट्राइक नॉर्मली. लिहाजा दिस रे ऑफ लाइट विल पास अनडिविएटेड थ्रू द डेंसर मीडियम. एक रे ऑफ लाइट ओपीआई ऑब्जेक्ट से, इट स्ट्राइक्स द सरफेस नॉर्मली, देयरफॉर गोस अनडिविएटेड. ये इस सरफेस पे नॉर्मल है, क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो हमेशा
चाहे प्लेन सरफेस होगा, चाहे चाहे जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो हमेशा स्फेरिकल सरफेस को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। लिहाजा ये Cn जो है इसको मैं नॉर्मल कहूंगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से दूसरी रे ऑफ लाइट आई, यहां देखो मेरी तरफ आप, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आई, दिस इज अगेन इंसिडेंट रे, इसने स्ट्राइक किया इस कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एट पॉइंट ए, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहां देखो इसने नॉर्मल के साथ, इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया, आई। एक रे ऑफ लाइट ओपी आई, ये गई अनडिवेटेड, यहां से अनडिवेटेड चलते आगे। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट ओ से आई, इसने क्या काम किया, इसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। चूंकि ये रियर मीडियम से आ रही है, किस मीडियम में जाना है, डेंसर मीडियम, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट विल गो अलोंग दिस इज ए आई। चूंकि ये जो रे है इट विल व्हाट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। तो जब ये चली गई एंड गोज अलोंग ए आई टू मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट आई। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, दोनों रिफ्रैक्टेड रे ने आपस में काटा प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे। देयरफॉर दिस आई इट इज द रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O formed at a distance v from the pole of the mirror। आप ऐसे लिखेंगे, O be the point object lying at a distance u from the pole of the mirror, I is the real image of object formed in what medium, denser medium, distant कितना, v from the pole of the refracting surface। ठीक है बेटा। Now in order to derive the relation between this v, u and r, we proceed as, हम क्या काम करेंगे, देखो ये एंगल आई है, ये जो है थोड़ा सा मैं इसको ठीक करूंगा, ये जो है ये एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये एंगल आई है, ये क्या है, एंगल आर। नाउ in order to derive the relation between VU and R, let us apply Snell's law at point A। point A पे हम क्या लगाएंगे, Snell's law। वो क्या कहेगा, sin I divided by sin R is equal to mu2 divided by mu1। Now by Snell's law we have sin I divided by sin R is equal to mu2 divided by mu1। यानी refractive index, ratio of refractive index of medium in which refracted ray travels to the refractive index of medium in which incident ray travels। sin I by sin R is equal to mu2 by mu1। Let's call this equation number first। चूंकि I और R स्मॉल है, लिहाजा मैंने बताया जब एंगल स्मॉल होगा, मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 0 इज इक्वल टू 0। जितना अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो उस वक्त sin I किसके बराबर होगा, I के ही बराबर, ठीक है ना। चूंकि एज I and R are small, चूंकि I and R जो है they are very small, therefore sin I is approximately equal to I, sin R is approximately equal to R। चूंकि एंगल्स I and R जो है they are very small, therefore sin I is approximately equal to I, sin R is approximately equal to R। तो उस सूरत में आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है ये क्या बनेगी, sin I के बदले क्या लिखूंगा मैं, I डिवाइडेड बाय sin R के बदले क्या लिखूंगा मैं, R, ये बनेगा I by R इज इक्वल टू mu2 by mu1। क्यों, यहां पर लिखूंगा मैं I and R are small। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा बेटा, शाबाश, ये बनेगा mu1 into I
इज इक्वल टू μ2 इंटू आर, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। इसको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड नाम, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। चूंकि आई और आर स्मॉल है लिहाजा साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर, तो आई बाई आर होगा μ2 बाई μ1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। लेट्स मूव अहेड। नाउ अब हम क्या काम करेंगे, we will calculate this I and R. Let us calculate these angles I and R from this diagram. हम लिखेंगे ऊपर calculation of I and R, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेट अस कैलकुलेट दीज टू एंगल्स। देखो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हम क्या काम करेंगे, इस A से हम AM परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। किस एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को। किसको ड्रा किया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस को। A से मैंने AM परपेंडिकुलर ड्रा किया, किस एक्सिस को बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस को। हम लिखेंगे ड्रा AM परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने AM प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है बेटा। ये कौन रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, नॉर्मल। सपोज जो इंसिडेंट रे है इसने एंगल अल्फा बनाया, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इसने क्या एंगल बनाया, अल्फा, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। सपोज इसने एंगल बनाया बीटा, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इसके बाद ये क्या है, नॉर्मल। सपोज इस नॉर्मल ने कौन सा एंगल बनाया, गामा, इसका नाम रखेंगे, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। What are alpha, beta and gamma? Alpha, beta and gamma, they are the angles made by incident ray, made by what, shabash, refracted ray and normal with the principal axis. अब मुझे ये I और R निकालना है। देखो इस डायग्राम की तरफ देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है AOC। ज्योमेट्री हम यूज करेंगे सिंपल ज्योमेट्री। ट्रायंगल है AOC। I जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। अल्फा और R जो है, अल्फा और गामा जो है वो इंटीरियर एंगल्स है। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, AOC, I is equal to अल्फा प्लस गामा। I किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो निकला I। अब मुझे क्या निकालना है, R। देखो मेरे पास एक और ट्रायंगल है ACI। गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। गामा देखो ये बाहर वाला एंगल है। R और बीटा क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो गामा किसके बराबर होगा, R प्लस बीटा। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AIC, फ्रॉम ट्रायंगल AIC आपका जो गामा है वो है R प्लस बीटा। लेकिन आपको गामा नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, R। तो बीटा यहां आएगा, इसका मतलब है R हो गया बराबर गामा माइनस बीटा। तो मैंने I का भी वैल्यू निकाला, R का भी वैल्यू निकाला बाय कंसीडरिंग दीज टू ट्रायंगल्स। अब हम I और R का वैल्यू जो है, लेट अस सपोज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I and R इन इक्वेशन नंबर 2। तो व्हाट वी गेट, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ I and R इन इक्वेशन नंबर 2। तो वी गेट μ1 into gamma minus alpha plus gamma is equal to μ2 into shabash gamma minus beta is equal to μ2 gamma minus beta। इसको हम रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने जो है, मैंने I और R जो है उसको मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड गामा।
Now let us calculate this alpha and alpha, gamma and beta. अब हम आगे जाएंगे. What we will do? We will calculate alpha, beta and gamma. Calculation of alpha, beta and gamma. हम इनको calculate करेंगे and we will get the result. देखो बेटा, यहां मेरी तरफ देखो. अल्फा जो है वो इस ट्रायंगल का एंगल है AMO, ये राइट एंगल ट्रायंगल है AMO, है ना बेटा. हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMO. हमें पता है चूंकि ये अल्फा जो है इट इज वेरी स्मॉल, सो अगर हम इस अल्फा का tan निकालेंगे वो अल्फा के बराबर होगा. अगर हम ट्रायंगल AMO लेंगे, AM डिवाइडेड बाय OM हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, वो क्या होगा tan अल्फा. हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MO. tan अल्फा हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज AM डिवाइडेड बाय MO. चूंकि अल्फा जो है अल्फा इज वेरी स्मॉल, चूंकि अल्फा जो है अल्फा बहुत स्मॉल है और हम अपनी assumption यूज करेंगे जब अल्फा स्मॉल होगा tan अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा. दिस एम्प्लाइज अल्फा निकलेगा आपको बराबर AM बाय MO, AM बाय MO. ओके, क्योंकि उस वक्त जब अल्फा स्मॉल होगा उस वक्त जो आपका tan अल्फा होगा दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू अल्फा. अब हमें बीटा निकालना है और गामा निकालना है. देखो बीटा के लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे AMI, गामा के लिए हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे AMC. सिमिलरली इन ट्रायंगल्स AMI एंड AMC सीधे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल्स AMI एंड AMC. देखो AMI लेंगे, AM डिवाइडेड बाय MI, AM हम ऐसे लिखेंगे tan बीटा है ना इस ट्रायंगल में इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MI, AM डिवाइडेड बाय MI, क्योंकि AM जो है वो परपेंडिकुलर है, MI जो है वो बेस है. दिस एम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू AM by MI. क्यों? क्योंकि बीटा इज शाबाश बीटा इज वेरी स्मॉल, तो उस वक्त जो आपका tan बीटा होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AM by MI. ये कौन सी ट्रायंगल ली थी मैंने AMI. अब मैं दूसरी ट्रायंगल लूंगा, वो क्या है AMC. ठीक है ना, इसमें मैं क्या निकालूंगा tan गामा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MC. तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू AM बाय MC. क्यों? गामा इज वेरी स्मॉल, लिहाजा tan गामा जो होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा. तो हम लोगों ने अल्फा भी निकाला, बीटा भी निकाला और गामा भी निकाला. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3. अब हम अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3. व्हाट वी गेट, हमें ऐसे निकलेगा μ1 इनटू अल्फा के बदले क्या लिखोगे AM by MO. वेरी गुड, AM by MO प्लस उसके बाद क्या हमारा गामा, उसके बदले क्या लिखोगे शाबाश AM by MC इज इक्वल टू μ2 इनटू शाबाश गामा के बदले क्या लिखेंगे हम शाबाश AM by MC, AM by MC, AM by MC माइनस जो बीटा है बीटा के बदले क्या लिखेंगे हम शाबाश AM by MO, AM by MI, AM by MI. इस इक्वेशन को नाम रखेंगे 3rd.
फोर्थ ओके, इसका नाम मैंने रखा इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, वी विल कैंसल am थ्रू आउट, क्योंकि हर एक टर्म में am है तो वी विल कैंसल am थ्रू आउट। तो हमें क्या मिलेगा जब हम am को कैंसल करेंगे थ्रू आउट, हमें निकलेगा ऐसे μ1 इंटू 1 बाय mo प्लस 1 बाय mc इज इक्वल टू μ2 इंटू शाबाश 1 बाय mc माइनस 1 बाय mi। इसको रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 5। μ1 इंटू 1 बाय mo प्लस 1 बाय mc इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय mc माइनस 1 बाय mi। यहां देखो बच्चों, चूंकि mo, mc, mi these are the distances on the principal axis, है ना। चूंकि एपर्चर ऑफ मिरर जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जब एपर्चर ऑफ मिरर स्मॉल होगा तो हमारा जो m है ये किसके साथ कोइंसाइड करेगा, p के साथ। यू सी m पॉइंट ये कह रहे कद से कोइंसाइड ps से, क्योंकि इतना बना एजम्पशन ऑफ एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। सिंस aperture of mirror, aperture of surface is small, aperture of surface is small, therefore m will point m will coincide with point p, point m will coincide with point p। तो अब जो m है वो कहां आया, p पर। इसका मतलब है जो डिस्टेंस हमने m से मेजर की वो किसके बराबर होगी, फॉर एग्जांपल mo वो किसके बराबर होगा, po। इसी mc वो किसके बराबर होगी, pc। mi वो किसके बराबर होगी, pi। तो हम ऐसे लिखेंगे therefore fifth becomes μ1 into 1 by po, चूंकि m ने कोइंसाइड किया p के साथ तो mo जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा po प्लस 1 by pc इक्वल टू μ2 इंटू 1 बाय pc माइनस 1 बाय pi। इसको रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर 6। अब हम यहां पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो po होगा ये होगा माइनस u, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट यहां से आई थी। नाउ as per sine convention, जो आपका PO होगा वो होगा माइनस u। अब यहां देखो जो आपका PC है, यहां देखो PC आपका जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका यहां पॉजिटिव होगा क्योंकि ये आपने मेजर किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। PC इज इक्वल टू R। इसके बाद आपका जो PI होगा वो होगा V, माइनस V नहीं V। क्यों, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लोअर इस मेजर का PI S बराबर SVS। Therefore 6 becomes, क्या बनेगी इक्वेशन 6, शाबाश 6 क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 6, यू टेल मी, बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा μ1 इंटू 1 बाय माइनस u प्लस 1 बाय r इज इक्वल टू शाबाश μ2 इंटू 1 बाय r माइनस 1 बाय v। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे हम यहां पर। μ1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से μ2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा μ1 बाय माइनस u प्लस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय r माइनस μ2 बाय v। ये जो r है इसको इस साइड में लेंगे और इसको यहां लाएंगे, ये क्या बनेगा μ1 बाय माइनस u, ठीक है, प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 बाय r माइनस μ1 बाय r। अब r नीचे डिनोमिनेटर में तो कॉमन आएगा भाई, एक ही डिनोमिनेटर आएगा, ये बनेगा μ1 बाय माइनस u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू
और एक ही डिनोमिनेटर रहेगा, ऊपर रहेगा μ2 माइनस μ1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैं आगे कुछ क्वेश्चंस में यूज करूंगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। व्हेन the object lies in the rearer medium and image is formed in what medium? Denser medium of a convex refracting surface। यहां देखो, जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कन्वेक्स सरफेस पे होगी तो आपको ऐसी रिलेशन जुबानी याद रखनी है। जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस सरफेस पे होगी? कन्वेक्स सरफेस पे होगी। ये रिलेशन आप कैसे याद रखोगे? व्हाट इज μ1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट मीडियम? रियरर मीडियम। तो आपको रिलेशन ऐसे बनेगी, आर आई ऑफ रियरर मीडियम डिवाइडेड बाय माइनस व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ भाई नजर नहीं आ रहा? व्हाट इज μ1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियरर मीडियम डिवाइडेड बाय माइनस टाइम इज व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस व्हाट इज μ2? refractive index of what medium? Denser medium plus Ri of denser medium divided by what is V? Image distance equal to what is μ2? Refractive index of what medium? Denser medium. Refractive index of dm minus what is μ1? Refractive index of Rm यानी rearer medium divided by radius of curvature of surface। Radius of curvature of surface। तो जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगी तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियरर मीडियम यानी μ1 डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू refractive index of denser medium minus refractive index of rearer medium divided by radius of curvature of surface। ठीक है ना? This relation is very very important, ये याद रखने आपको। This completes today's lecture।